आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं दक्कन रियासतों से जुड़ी तमाम अहम खबर। मानी सीटों पर आज वोटिंग का काम मुकम्मल हो गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग लगातार शाम 6 बजे तक चलती रही। इस दौरान सीएम पलनीस्वामी, साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम के अलावा फिल्म अदाकार रजनीकांत, डीएमके उम्मीदवार कनिमोझी समेत कई अहम लीडरान ने वोट डाले। इंतजामिया के सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच जगह जगह वोटर्स की लंबी कतारें देखी गईं। इस मरहले में तमिलनाडु, पुडुचेरी की 39 पार्लिमानी सीटों के अलावा कर्नाटक के 14 हलकों में भी वोटिंग हुई। तमिलनाडु की 38 और पुडुचेरी की 1 सीट पर होने वाले इंतखाबात में एआईएडीएमके, बीजेपी और डीएमके कांग्रेस इत्तेहाद के बीच सीधा मुकाबला है, जिसके तहत पीएम मोदी और कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कई मुश्तरका रैलियां की थी। एक तरफ जहां बीजेपी इत्तेहाद मोदी हुकूमत के 5 साल की उसूलियाबियों के बखान कर वोट मांग रही है, तो दूसरी जानिब डीएमके इत्तेहाद का दावा है कि वो इस बार रियासत में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 2 पार्लिमानी हलकों की वोटिंग रद्द कर दी है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं और दक्कन से ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों से लेकर आम लोगों ने सबने वोटिंग की है लंबी कतारों में लगकर। जहां पर केरल के जो सीएम हैं पलनीस्वामी, उन्होंने कतार में लगकर वोटिंग की। और तमिलनाडु की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कनिमोझी को आप देख पा रहे हैं, यहां पर डीएमके की उम्मीदवार जिन्होंने वोट का अपना इस्तेमाल किया है। The Tamil people want a change of government both at the center and following that in the state. That is why there's overwhelming support for the secular progressive front formed by the DMK, Congress and the allied parties. I have voted and I appeal to people to vote for the democratic secular front. We have to preserve our independence, sovereignty, democracy, self-respect. We have to fight against superstition. We have to fight against false beliefs. We believe that all religions are equal, and we believe that transcending caste and community, everyone is equal before the law. We have to uphold the pride of the Indian people as well as the pride of the nationalities that are in India, and in Tamil Nadu, the Tamil nationality. और उधर कर्नाटक में भी दूसरे मरहले में 14 सीटों पर बड़े पैमाने पर वोटिंग होने की खबर है। इस दौरान साबिक पीएम एचडी देवेगौड़ा के अलावा सीएम कुमारस्वामी, वजीर दिफा निर्मला सीतारमण, साबिक सीएम सिद्धरामैया समेत कई अहम लीडरान ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस दौरान जहां निर्मला सीतारमण ने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया, तो साबिक पीएम देवेगौड़ा कांग्रेस सदर राहुल गांधी की हिमायत करते नजर आए। वाज़ेह रहे कि रियासत में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद का बीजेपी से सीधा मुकाबला है और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। I am going to stand by Rahul Gandhi because we are running a coalition government. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಸೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. I am going to stand by Rahul Gandhi because we are running a coalition government. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಸೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Today you see a lot of senior citizens, first-time voters, young and enthusiastic. It was very encouraging. I didn't feel it was 1 hour, but very encouraging to see this kind of a turnout. I'm glad that there is such a response from citizens that augurs well for democracy. Absolutely positive response. And our candidate is sure to win with huge margin. There's never a tussle as regards BJP's seat. The party's decision is the final, and all of us have worked and campaigned for the party. Individual candidates are also our candidates. Obviously, good candidates have been chosen by the BJP, and so
through them we are also expecting to have Fir Ek Baar Modi Sarkar. Mandya campaign and Mandya, the publicity which was given by our local media friends, because they have taken Monday is the top priority. Because of that, everybody forget the Narendra Modi. This local media, they try to create euphoria about Sumalata. In that context, Narendra Modi was lost in Karnataka politics. I really congratulate our local media friends for their support to Sumalata in a big way, to forget Narendra Modi to vote in this election. So this election results, do you think it will play a big role in national politics? Definitely, national parties Karnataka election result will going to play a major role, and other than BJP in the next after the election result, other parties will going to form the government. The dynastic issue is not important issue now. Country's problem is the main issue. Dynastic politics, because of dynastic politics only, this country developed in several states because of regional politics. We are not bothered about their BJP's criticism. दोनों मुकामी और मरकजी दोनों मुद्दे रहे हैं, और इन मुद्दों में एक बदलाव लोग चाहते हैं और नौजवानों के हाथ को काम चाहते हैं, और नौजवान परेशान हैं, छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं, जीएसटी से परेशान हैं, टैक्स से परेशान हैं, पेट्रोल की रेटों से परेशान हैं, गैस की रेटों से परेशान हैं। लोग आज एक सरकार, ऐसी सरकार आनी चाहिए जो लोगों के बीच, लोगों के लिए काम करे, इसीलिए ये लोग परेशान हैं और एक नए बदलाव के लिए ये लोग वोट डालना चाहते हैं। फ़िरका वाराना जो फसादात हुए हैं, लोगों के बीच जो खलिश पैदा की गई, समाज को तोड़ने की जो पूरी कोशिश की गई पिछले 5 साल में, इससे सब लोग बदजन होकर के एक नई हुकूमत को लाना चाहते हैं, नए कैंडिडेट को लाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक रियासत कर्नाटक में जनता दल और कांग्रेस की जो अलायंस है वो अलायंस जीतेगी। हर एक अवाम के अंदर एक अवेयरनेस आ गया कि भाई हमारा हक हम चलाना चाहिए करके, वो हिसाब से अब मैं भी अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा सेंट्रल के ऑलमोस्ट सीवी रामनगरा, माधेपुरा, राजाजी नगर, गांधी, ऑलमोस्ट सब जगह गया था। जिधर भी जो आदमी बदलाव चाहता था, इन्हें ये नहीं कि पर्टिकुलर ये कौम वो कौम करके, हर कौम, अभी पीसी मोहन को 2 बार उनको एमपी बनाया गया था इधर ये हल्के से। 2 बार एमपी बनने के बाद किधर वो दिखाई नहीं दिए। पहली बार 2009 के अंदर एमपी बने थे, 2014 तक एमपी थे। चलो अगली बार तो 2014 के बाद भी इलेक्ट हुए, इलेक्ट होने के बावजूद भी किधर नहीं गए। 2014 के अंदर अरशद रिजवान ने लास्ट मिनट में उनको टिकट दिया गया। लास्ट मिनट मतलब 15-20 दिन बाकी थे। अभी 15-20 दिन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करना मुश्किल है, 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में करना इम्पॉसिबल है। वो तो भी वो 1,35,000 वोट से आ रहे थे, मतलब 60 पर 4,000 वोट लेते थे अगर अरशद रिजवान जीत जाते थे। I represent youths and I have a lot of vision. I've been taken many times. और वोटिंग के दौरान तीसरे मरहले की तशहीर पर निकले सीएम कुमारस्वामी के चॉपर की फिर से तलाशी हुई है। उत्तरी कन्नड़ा में एयरपोर्ट पर उनके चॉपर को रोककर आईटी ने पूरी तलाशी ली। इससे पहले कल भी सीएम कुमारस्वामी के चॉपर की तलाशी ली गई थी, जबकि उससे एक दिन पहले आईटी ने कर्नाटक के साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। जब येदियुरप्पा चॉपर से जा रहे थे उस वक्त उनके सामान की तलाशी ली गई। हालांकि अपोजिशन इन कार्रवाइयों के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार बताती रही है। उनका कहना है कि अपोजिशन लीडर्स को डराने की वजह से, डराने की गरज से कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी लीडर को खुली छूट देने तक का इल्जाम लगाया। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से चॉपर की तलाशी ली गई है। कुमारस्वामी के चॉपर की तलाशी ली गई है। दूसरे मरहले की वोटिंग तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन तीसरे मरहले की इंतखाबी तशहीर के लिए जब वो जा रहे थे तो उस वक्त उनके चॉपर की तलाशी ली गई है। हालांकि इससे पहले हम आपको ये भी बताएं कि येदियुरप्पा के चॉपर की भी तलाशी ली गई थी। अपोजिशन इन तलाशियों को जिस तरह से रेड्स मारी जा रही है, इसको लेकर ये कह रहा है कि अपोजिशन को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है।
और सीधा रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, मुझे बताइए कि कितना फीसद रहा, क्या अभी तक आपको पता चल पाया है? और अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर शहरों की मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बुशरा, देखिए कर्नाटक में इस मरतबा जो परसेंटेज रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से स्पीड में सुबह से वोटिंग हो रही थी ऐसा लग रहा था कि 70 के करीब करीब पहुंच गया, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्योंकि अभी बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यही अंदाज़ा है कि 60% के आसपास जो है ये पूरा जो है पूरे रियासत की जो है परसेंटेज हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मंगलूर में हुआ है 72%, और सबसे कम बेंगलोर सेंट्रल में हुआ है 45% की वोटिंग हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबसे कम बेंगलुरु हुआ है, जबकि कैपिटल और सबसे सेंट्रल प्लेस जो है उसमें सबसे कम वोटिंग हुई है। हमने देखा था कि हैदराबाद जैसे शहर में भी जहां काफ़ी जोश व खरोश माना जाता है, काफ़ी बयानबाजी का माहौल रहता है, वैसी जगह भी जो है सबसे कम परसेंटेज हुआ था। उसी तरह से बेंगलुरु सेंट्रल भी जो है पूरे कर्नाटक के 14 सीटों में सबसे कम परसेंटेज वोटिंग यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी ऐलान होना बाकी है, थोड़ी ही देर में पूरी रियासत का ऐलान किया जाएगा। उस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ अहबाब हैं। क्या परेशानियाँ पेश आई हैं आज वोटिंग में, किस तरह से सुबह से लेके बहुत सारे पार्टी के मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर हमारे साथ हैं, क्या परेशानियाँ हुई थी सब आज की परेशानी ये है कि जो वही पहले जो परेशानी थी वही आइडेंटिटी कार्ड की परेशानी है। आइडेंटिटी कार्ड मुकम्मल तरीके से इंसान को नहीं मिला है, इसकी वजह से जो है आईडी नंबर अलग रहता है और नाम अलग रहता है। किसी की फ़ोटो रहती है, किसी का एड्रेस रहता है, किसी की नाम रहता है, तो इसी तरीके से बहुत प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या ख़वातीन के लिए क्या परेशानियाँ हुई? आप सुबह से मैं देख रहा हूँ आप थी यहाँ पे। हाँ, वही हम लोग तो बहुत से मेहनत की है सर, मगर प्रॉब्लम्स बहुत है क्योंकि आईडी नहीं मिल रहा है मेंबर्स के लिए, और नेम्स का प्रॉब्लम, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और बहुत से शिफ्टेड हैं, डेथ हैं, वो पूरा मिला के लिस्ट में आ रहा है, तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करना पड़ रहा है पब्लिक के लिए। जो जिंदा है उनके नाम नहीं है, जो मर गए हैं उनके नाम, जो जिंदा है वो नाम नहीं आ रहे, जो डेथ हो के हैं डिलीटेशन हर साल करा रहे हैं हमें, जब भी इलेक्शन आता है तो हम लोग करा रहे हैं, तो फिर भी वो आते ही रहते हैं। वो जो हैं आदमी लोग आके इतना उनको होम की ये रख के आके। अच्छा, क्या वजह है कि इतना कम परसेंटेज हुआ? दूसरी वजह क्या है? दूसरी कुछ भी वजह नहीं है सर, यूथ का वोट जो है एटलीस्ट वोटिंग जो आईडी बना के हैं वो आ गया रहता तो 100% वोटिंग्स होता सर। आईडी मिलने की ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है परेशानियां लोगों को दरपेश आ रही हैं। शायद मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल मेरे वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द लौट रहे हैं। रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से मेरे रिपोर्टर शाहिद काजी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी। शाहिद, हमने देखा था खासतौर पर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहां एक तरह से मुहिम भी चलाई गई थी इन्हीं इश्यूज को लेकर, जिसको लेकर यहां मौजूद लोग जिसको उठा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के नाम गायब हैं, और खासतौर पर यह भी कहा गया था कि एक खास तबके के लोगों के नाम गायब है। इसको लेकर मुहिम चलाई गई थी, बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काम किया था इसको लेकर, कि उसके बावजूद भी क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की परेशानी सबसे ज्यादा देखने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए हमने काफ़ी लोगों को इसमें देखा कि तकरीबन 10 या 12 साल पुराने वोटर आईडी लेकर आ रहे थे और उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं था। उसके अलावा ये मुहिम चलाने के बावजूद भी लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से लोग यही समझ रहे थे कि हम पिछले मरतबा वोट कर चुके हैं तो इस मरतबा भी हमारा लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाज़ ऐसे लोग थे जो पिछले इलेक्शन में वोटिंग करे हैं और इस मरतबा उनका नाम नहीं है, और कई ऐसे नाम थे जो जिंदा नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कार्ड है और सब कुछ है, इसके बावजूद भी लिस्ट में नाम नहीं है। इसी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी लंबे कतारें तो थी, लोग आ रहे थे लेकिन वापस लौट भी जा रहे थे। ये मामला सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी या एक ही इलाके में नहीं हुआ, ये पूरे बेंगलोर में देखने को मिला है, और जितने 14 कॉन्स्टिट्यूंसी थे वहाँ भी ये शिकायतें मौसूल हुए हैं। बाकी जो मशीनों की जो दिक्कत आ रही थी, जो ख़राब हो रहे थे और काफ़ी देर से शुरू हुए, ऐसे भी कुछ दिक्कतें पेश आई, लेकिन सबसे बड़ा मसला वोटर आईडी का ही था। उसके अलावा जो वोटिंग का जो फ्लो था, हमने देखा कि कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी बड़ा हुआ है, कुछ एक बूथ में इतना ज़्यादा था कि 70-80% तक चला गया था, लेकिन कुछ बूथ में बिल्कुल 40% भी नहीं हो पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या वजह है कि कुछ इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हो रही है और कुछ इलाकों में कम हो रही है। खास करके शिवाजी नगर जो है काफ़ी बड़ी आबादी वाला इलाका है, काफ़ी मार्केट प्लेस है,
वहाँ हमेशा जो है वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहता है, लेकिन इस मरतबा वहाँ काफ़ी सुस्त रफ्तार थी। सुबह से ही देखने मिल रहा था कि वहाँ पे वोटर जो हैं ज़्यादा नहीं आ पा रहे थे। पॉश इलाके जहाँ थे उन इलाकों में भी ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे थे। हम खास करके जो स्लम इलाके हैं या फिर थिकली पॉपुलेटेड इलाके हैं जहाँ ज़्यादा आबादी है, ऐसे इलाकों में काफ़ी हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए। खास करके इस मरतबा जो ख़वातीन हैं वो बड़ी तादाद में आके वोटिंग कर रहे थे। इसके बावजूद भी जो है ये परसेंटेज जो गिरा है, ये बड़े अफसोस की बात है। इस पर जो है तमाम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। जी शायद ये बताइए कि और भी हमारे साथ जी आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या मसला पेश आया था। बताएं कि वोटर आईडी कार्ड के अलावा भी कुछ अलग मसाइल थे? मसाइल तो वोटर आईडी से ही लेके चलते आते हैं इसमें। मतलब कैसा बोले तो अभी जैसा मेरे दोस्त बता रहे थे कि मतलब नाम दूसरों का है, फोटो अपनी है, एड्रेस गलत है, एपिक नंबर है, ऐसे बहुत सारे मसले इधर आए इधर, जिससे पिछले 2 साल पहले असेंबली इलेक्शन में जो लोग इधर आके जो रेगुलर वोट कर रहे हैं उन लोग का वोट उठा के दूसरे बूथों पे शिफ्ट कर दिया, समझे? जो समझ कन्फ्यूजन पे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, समझे बात है। अच्छा, जो मुहिम भी चलाई गई थी जिनके वोटर आईडी में नाम नहीं है वो लोग करें, इस तरह के काफ़ी अच्छी मुहिम भी चली थी, उसका काफ़ी असर भी देखने वो सिर्फ मुहिम चली थी बस, वो जिसके कहने के लिए मुहिम चली थी। वोटर आईडी में नाम नहीं है मतलब वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग ऐसा कुछ दूसरे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाके। अच्छा, हर बार ये शिकायत आते हैं, हर बार ये कोशिश की जाती है, क्या इसका हल नहीं किया जाता? करना चाहिए इसका हल, क्योंकि आज तो बहुत पब्लिक बगैर वोट के चले गए हैं, जिनके पास वो एड्रेस के प्रॉब्लम थी, शिफ्ट हुए हैं, इनको सब प्राइवेसी मिलना चाहिए। कभी भी कुछ चेंजेस ऐसा होता है तो इमीडिएट उनको कार्ड मिलना चाहिए, उनका एड्रेस चेंज होना चाहिए, तभी वोटिंग कंटिन्यू हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ कार्ड का ही मसला नहीं था, कई और भी मसले थे इस सिलसिले में जी जिसकी वजह से जो है वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बेंगलुरु सेंट्रल जो है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कम हुआ है, जबकि दीगर हलकों में जो है काफ़ी अच्छा, जैसे कि हासन में 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, मैंगलोर में 70% से ज़्यादा हुई है, तो कहीं ना कहीं मंडिया में काफ़ी अच्छा क्योंकि खासतौर पे कर्नाटक की हम बात करें तो ये जाना जाता है और यहाँ पर परसेंटेज हमेशा ये देखी गई है कि कर्नाटक की ज़्यादातर सीट्स पर ये देखा गया है कि 70% से अब वोटिंग होती है। ऐसे में अगर बेंगलुरु सेंट्रल में इस तरह से कम वोटिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि सोचने वाली बात है कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई इश्यूज रहे हो जिस तरह से लोग बात भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए के दिन भी पीएम मोदी कर्नाटक में आवाम की रैली इन्होंने की है, अवामी रैली की है, जहां रियासत में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। चिकोडी रैली के दौरान पीएम मोदी अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियां उन्होंने गिरवाई, लोगों से मरकज में मजबूत हुकूमत बनाने की अपील भी की। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग कर्नाटक के मजबूर सरकार की हालत देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एयर स्ट्राइक के सहारे भी आवाम को लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत ने किसी दूसरी सरहद में जाकर हमला किया है। पीएम ने अपनी हुकूमत के कामों को आवामी फलाह के लिए बताते हुए अपोजिशन पर जमकर हमला भी बोला। पिछले 5 वर्षों में भारत ने विकास और आत्मविश्वास की जो भी सीढ़ियां चढ़ी है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद है। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत हमारे देश में चल रही है। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को पहली बार 10% आरक्षण का लाभ मिल पाया है। 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को हमने टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। आजादी के इतिहास में पहली बार सीमा पार घुसकर आतंकवादियों पर भारत ने प्रहार किया है। आज मैं नए भारत के लिए सहयोग मांगने आपके बीच आया हूं।
आपने 5 वर्ष की मजबूत सरकार का भी काम देखा है और आप एक मजबूर सरकार का काम अभी यहां कर्नाटका में अनुभव कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने औसाफ सईद को सऊदी अरब में भारत का सफीर बनाया है। इस मौके पर हैदराबाद में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों ममालिक के बीच हालिया दिनों में बेहतर रिश्तों पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर जहां औसाफ सईद ने लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं रियासत के वजीर दाखिला महमूद अली ने हैदराबाद में भी सऊदी अरब का एक मरकज कायम करने की मांग उठाई है। इस दौरान मुबारक हज से लेकर खलीजी मुल्कों में रह रहे हैदराबाद के लोगों की बेहतरी पर भी चर्चा हुई। Responsible task of being an ambassador of India in the Kingdom of Saudi Arabia. This is my 3rd stint in the Kingdom of Saudi Arabia. I had been there before. First as the Council Hajj way back in 95 to 98, immediately after I finished my assignment here as Regional Passport Officer Hyderabad. Then I was there as the Consul General of India in 2004 to 2008 for 4 years, and this is the larger responsibility we have. As you are all aware that we are going through a very important phase in the relationship between India and Saudi Arabia. हैदराबाद के अंदर ख़ासतौर से कॉन्सुलेट ऑफिस की ज़रूरत है। मुझसे 2 दिन पहले भी काफ़ी मुलाकात हुई थी, इस बारे में डिस्कशन हुआ। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा था कि हमारे हैदराबाद के काफ़ी लोग सऊदी अरब में रहते हैं और यहाँ से हज पिलग्रिम के लिए भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो अगर कॉन्सुलेट ऑफिस एक हैदराबाद में होगा तो बेहतर है, उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला था। और सऊदी अम्बासडर भी जब हैदराबाद आए थे, सीएम साहब ने उनसे गुजारिश की थी कि एक कॉन्सुलेट ऑफिस हैदराबाद में खोला जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है औसाफ सईद साहब की तरफ से, क्योंकि वो खुद हैदराबादी है, इंशाल्लाह हैदराबाद में कॉन्सुलेट ऑफिस खोला जाएगा। और हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। 2 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे की होने जा रही है। 23 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात में वोट डाले जाएंगे और आप इसमें वोट जरूर करें। बेदार बने, अपने घर वालों, दोस्तों, सभी जानने वालों को भी बेदार करें। आपको ये ख्याल रहे कि आपकी बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई भी वोटर ना छूटे।